So boys, we earlier discussed in the class scope of physics, class first year chapter, and that we discussed the definition about the physics, and before that we discussed the branches about the science and definition about the science in terms of physical science and terms of biological science. We also discussed in detail. Then we discussed definition of physics. हमने physics की definition discuss की थी. After that, we move towards the classification of physics in terms of biological physics and also in terms of classic physics, which we previously classes में हम discuss करके आए हैं. And also the certain branches we also discuss, and after that we discuss the contribution of physical science Muslim scientists who work in the field of physics. So we discuss those scientists especially in physics, and some are related with the chemistry and some are related with the biology. Okay. uh, Later on we move towards another topic, which is the measurement and system of units, and that we discuss the fundamental system of units. So there are basically the four fundamental units systems. The चार systems हैं: CGS system and British Indian system, MK system, and then we have a system of international that is called SI system, जिसको कहते हैं. ठीक है जी. So basically uh, in this system of international, there are basic fundamental quantities, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स. उन क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उनको कहते हैं बेसिक क्वांटिटीज़ कहते हैं. उनके यूनिट्स को कहा जाता है बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज़. वी कैन आल्सो से द फंडामेंटल यूनिट्स. And in that system, in system of international, basically consists of three kinds of units. तीन इसके काइंड्स होते हैं यूनिट्स के. एक को कहलाता है बेसिक यूनिट्स, अनदर इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स, अनदर इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स. ठीक है जी. सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आल्सो एडिशन इसमें आ गए. तो बेसिक जो यूनिट्स हैं तो वो कौन कौन से हैं? अगर सिस्टम में बात करें सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की, फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेसिकली देयर आर द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज इन दैट system. So we have a seven basic fundamental quantities in system of international. Those are length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, luminous intensity, and we have amount of substance. Okay, so these are the fundamental quantities in system of international. Okay, there are seven fundamental quantities, basic quantities in system of international, and we have also these fundamental units. So I earlier mentioned with you people, those are length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, human intensity. The unit of length is in this system of international is considered as a length. यूनिट इज मीटर. ओके. मास का यूनिट जो होगा वो किलोग्राम होगा. टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड होगा. इलेक्ट्रिक करंट यूनिट इज एम्पेयर. एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यूनिट इज कैल्विन. कैल्विन वन ऑफ द साइंटिस्ट का नाम है. ठीक है जी. इसमें सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और कैल्विन स्केल आते हैं. लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम जब लॉन्च हुआ था 1960 में, जो आपका पेरिस में हुआ था, फ्रांस के सिटी पेरिस में हुआ था. ठीक है. एंड विच जितने भी फिजिक्स थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, बेसिकली दे लॉन्च सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. ओके. एंड इसमें मीटिंग जो हुई थी, मीटिंग फॉर दी स्टैंडर्डाइज किया गया था सारी क्वांटिटीज़ को. बिकॉज अर्लियर वी हैव three system. One is called the CGS system, another is called the MK system, and another is called FPS system. Later on we have a new system that is called system of international. So in system of international we have seven fundamental or basic quantities. Those are length, mass, and time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, luminous intensity. So here unit of temperature is considered as a Kelvin, because Kelvin is the name of a scientist. Similarly electric current का जो यूनिट होगा वो भी आपके पास जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, वो एम्पेयर. एम्पेयर इज सिंबल ए से लिखते हैं. ठीक है जी. इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसका यूनिट क्या होगा? मोल होगा. और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, लाइट की इंटेंसिटी, उसका यूनिट क्या होगा? कैंडिला होगा. So these are the basic fundamental quantities and basic fundamental units इसको कहते हैं, या basic units कहते हैं. ठीक है जी. And then we have another quantity जिसको हम कहते हैं derived quantities. What is the main difference between the fundamental quantities and the derived quantities, या fundamental units and derived units? इनके दरमियान difference क्या है? इनकी definitions क्या होंगी? Fundamental quantities are those quantity which were not made from any other quantities. कहने का मकसद है कि ये कैसी बुनियादी क्वांटिटी है जो कि किसी भी क्वांटिटी से बनी हुई नहीं हो. ठीक है. इसको हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी. उसके यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स. यहाँ पे इसको बेसिक क्वांटिटी भी कह सकते हैं और बेसिक यूनिट्स भी कह सकते हैं. ठीक है जी. एंड देन वी हैव अनदर क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड द ड्राइव क्वांटिटी. सो
Dry quantities are those quantities which were basically taken from the fundamental quantities. All those quantity which is taken from the basic quantities or fundamental quantities, those quantities are called ड्राइव quantities और उनके यूनिट्स को कहेंगे हम ड्राइव यूनिट्स. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे जो है आपकी लेंथ की, तो यहाँ पे उसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा. अगर लेंथ को ट्वाइस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एरिया होगा. एरिया बेसिकली हम इसे कह सकते हैं एरिया, इसका जो फार्मूला होगा एरिया का, वो लेंथ इनटू विड्थ. ठीक है जी, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. लेंथ कहते हैं जो है आपकी लंबान, और उसकी विड्थ जो है इसकी चौड़ाई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी हैव one new formula, new quantity जिसको हम कहते हैं drive quantity. So area is a drive quantity whose formula is a area is equal to length into width. क्योंकि width भी length है और length का यूनिट जो है आपको पता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में वो क्या है, मीटर है. ठीक है जी, तो मीटर और width भी लेंथ है, width unit is also meter. When we multiply meter with a meter we obtain the meter square या square meter is the unit of area. So area unit क्या होगा बेटा, area का unit होगा square meter which is a derived quantity, and unit क्या होगा, drive unit कहलाएगा. ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर मीटर लिखेंगे. So another quantity just like a volume. वॉल्यूम जो है बेसिकली एक एग्जांपल लें. फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्यूब. ओके, अगर हमारे पास एक क्यूब है तो क्यूब में क्या यू नो, तो थ्री डायमेंशनल क्यूब है, उसमें क्या होगा आपके पास, लेंथ विड्थ एंड हाइट. ओके, उसमें लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी. ठीक है, ये तीनों हाइट्स लेंथ से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मीटर इंटू मीटर, तो क्या होगा, क्यूबिक मीटर. सो क्यूबिक मीटर जो है बेसिकली ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज ए ड्राइव क्वांटिटी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एरिया की बात करें, अगर आप जिस रूम में बैठे हैं उसका जो एक फ्लोर है जिसको हम फर्श कहते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया है. ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, फिर कंपेयर दो किसी रूम्स का कंपेयर कर सकते हैं. अगर दो रूम हैं आपके घर में तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसका एरिया कितने है, इसका एरिया जो है कितने मीटर स्क्वायर है. ठीक है, सो वी कैन आल्सो डिस्टिंग्विश द एरिया ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सरफेसेस. सरफेसेस का हम जो है एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. स्मॉल एलिमेंट्स उसको हम कंसीडर करें या एज अ लार्ज एलिमेंट हम कंसीडर करें, वी कैन आल्सो फाइंड द एरिया. डिपेंड अपॉन कि आप एरिया को कंसीडर करें एज अ स्मॉल क्वांटिटी में मेजर कर रहे हैं या इन टर्म्स ऑफ लार्ज क्वांटिटी में मेजर कर रहे हैं, so we can find also the area. ठीक, इसी तरीके से some are other quantities, those also considered as a dry quantities, and such as speed, velocity, acceleration, force, work. Okay, and these are also called ड्राई क्वांटिटी. इसमें मोमेंटम भी आ जाता है और भी फिजिकल जो है आपकी बेसिक जो है वो क्लासिक फिजिक्स से रिलेटेड जितने मैकेनिक्स के फार्मूलाज हैं, दोज आर आल्सो कंसीडर एज अ ड्राइव क्वांटिटीज एंड यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स. ठीक, तो ये सिस्टम इंटरनेशनल में बेसिकली जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी बेसिकली वी हैव, so those are the included in the system of international. Okay, so they have a basic quantity, basic units, and then we have another quantity, drive quantity or drive units. So in front of you, you are witnessing the drive units. ठीक है, आप drive quantities or drive units देख रहे हैं. Area is a drive quantity whose unit is, drive unit is called square meter. Similarly, volume is a drive quantity whose unit is मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर कह सकते हैं. स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, बेसिकली में डिफरेंस क्या है, द मैन डिफरेंस इज दैट स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. ठीक है जी, और आपके पास जो है वेलोसिटी क्या है, इस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. तो दोनों डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या है, बेसिकली सेम है. वो ऐसा सिस्टम में हम बात करते हैं, लेंथ है तो इनको हम मेजर करते हैं मीटर्स में. ठीक है जी, वन इज स्केलर क्वांटिटी, अनदर इज द वेक्टर क्वांटिटी. सो स्पीड इज scalar quantity because it possess only and only magnitude. Okay, there is no any well specified direction, क्योंकि यहाँ पे distance और displacement का relation जो आपने क्लास प्रीवियस में पढ़ा है मैट्रिक में, that if there is a particular direction तो उसको हम कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है. अगर पाथ में ऑब्जेक्ट में चेंज आए तो हम कहेंगे ये पाथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है. ठीक है, सो डिस्टेंस पर टाइम इज कॉल्ड स्पीड हुज यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. ठीक है, उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा. और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी हुज यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. दोनों का यूनिट क्या है, सेम है. ठीक है, तो दोनों जो है बोथ द क्वांटिटीज कंसीडर एज ए
ड्राइव क्वांटिटीज एंड हुज यूनिट इज आल्सो कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। ये दोनों जो है ड्राइव क्वांटिटी, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी क्या वेक्टर है। वन पजेस अ मैग्नीट्यूड, वन पजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। बट इन बोथ दैट देयर इज अ डिस्टेंस इज यूज, लेंथ मीटर जो होगा, लेंथ यूज की गई है, तो दोनों के जो है वो चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, इसको हम लेंथ से के ही कंसीडर करते हैं। उसका यूनिट क्या है, ऐसा सिस्टम में मीटर होगा। सिमिलरली दूसरी क्वांटिटी आपके पास क्या है, वो है आपके पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी में change I with respect to time, if there is a change in velocity, then acceleration is produced. Acceleration is again a fundamental formula of mechanics whose unit is meter per second square, और इसका जो सैम्बल होगा वो स्मॉल a होगा, ठीक है जी। सो बॉयस इसमें ये भी क्वांटिटी जो है आपकी कहलाएगी, दिस क्वांटिटी आल्सो कंसीडर एज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसको भी हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं, और उसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा बेटा, ड्राइव यूनिट्स होंगे। इसी तरीके से फोर्स जो है आपकी, ये भी ड्राइव क्वांटिटी है। फोर्स फार्मूला इज एफ इज इक्वल टू एम ए। when we exert the force on a mass, then mass is moving in the direction of force according to the law which was proposed by Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton का ही लॉ है ये, न्यूटन सेकंड लॉ, जिसमें जो है फोर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है जी। तो इसकी एक डेरिवेशन है जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में करके आए हैं, और आगे जो है थर्ड चैप्टर में भी हम इंशाल्लाह विल डिस्कस एंड इसके लास्ट को हम पढ़ेंगे। लेकिन लेटर ऑन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ये फोर्स का फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एंड फोर्स जो है बेसिकली ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट जो होगा वो फोर्स मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। सो ये बेसिकली न्यूटन ही इसका नाम, न्यूटन बेसिकली, न्यूटन ने ही अपने नाम से इसका यूनिट दिया, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर थे। न्यूटन को हम एन कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है जी। सो वेरियस साइंटिस्ट बेसिकली दे यूज देयर नेम्स जस्ट लाइक एम्पेयर ने अपना करंट में जो है वो यूनिट शो किया, जिस तरीके से पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है, ठीक है जी। सो देयर आर वेरियस यूनिट्स इन विच द साइंटिस्ट बेसिकली यूज देयर ऑन नेम, ठीक है। इंडक्शन की बात करेंगे, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन जो है हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आगे मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, तो उसका भी यूनिट क्या है, इंडक्शन का क्या है, हेनरी है। हेनरी वन ऑफ द साइंटिस्ट, चाहे वो सेल्फ इंडक्शन हो म्यूचुअल इंडक्शन हो, इन दोनों के यूनिट्स क्या है, हेनरी है, ठीक है। सो दीज बेसिकली क्वांटिटीज आर कंसीडर एज अ बेटा एज अ ड्राइव क्वांटिटी, जिनके यूनिट्स क्या है वो ड्राइव यूनिट्स हैं, ठीक है जी। तो कहने का मकसद है कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो कंसिस्ट ऑफ द थ्री काइंड्स ऑफ यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। इसमें बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर ड्राइव क्वांटिटीज और ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है बेसिकली विच आर टेकन फ्रॉम द अनदर क्वांटिटी, और विच इज टेकन फ्रॉम और विच इज ओरिजिनेट हमने किया है फ्रॉम द बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज किस सिस्टम में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल से हमने ये क्वांटिटीज जो है वो ओरिजिनेट किए, निकाली हैं, उसको हम कहेंगे ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है जी। सो मैकेनिक्स में जितने भी फार्मूलाज हम पढ़ेंगे जो है वो यहाँ प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ के आए हैं, दोज आर रिलेटेड विद दी ड्राइव क्वांटिटीज। उनके यूनिट्स को हम कहेंगे ड्राइव यूनिट्स। तो इनमें डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस बिटवीन दी ड्राइव क्वांटिटीज एंड ड्राइव यूनिट्स क्या है, और जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है जो कि इसको कहते हैं हम एसआई सिस्टम। इन एसआई सिस्टम दे आर बेसिक क्वांटिटीज एंड बेसिक यूनिट्स उनके भी हैं, ठीक है जी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनके बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट वी हैव इज अनदर क्वांटिटी which is called as another quantity, जिसको हम कहते हैं या यूनिट्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किए हैं, वी डिस्कस अर्लियर, जो हम डिस्कस करके आए हैं कि बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में ड्राइव यूनिट्स हैं। सिमिलरली इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री में एडिशनली यूनिट्स जो हैं वो भी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में रखे गए। अब यू आस्क अ क्वेश्चन कि व्हाई इट नेसेसरी, आखिर क्यों रखे गए, इसका मकसद क्या था। तो इसका बेटा जवाब ये कि ज्योमेट्रिकल जितने भी शेप्स हैं आपके, ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्फेयर की बात कर रहे हैं एंड सर्कल की बात कर रहे हैं, तो इनके कोई यूनिट्स नहीं है, ठीक है। सो साइंटिस्ट ने ये जाना, साइंटिस्ट ने जो है फिर इस पे काम किया, तो दे बेसिकली दे सेड दैट वी हैव अ नीड ऑफ अनदर काइंड ऑफ यूनिट्स, अनदर काइंड ऑफ मेजरिंग सिस्टम, जो कि हम उसका जो है एंगल मेजर कर सकें, चाहे वो स्फेयर का हो चाहे वो आपके पास सर्किल का हो। तो ये बेसिकली एक सर्किल के बारे में ही कॉन्सेप्ट दिया गया है, और जो है अनदर इज दी स्फेयर के बारे में। अब आपको पता है कि सर्किल इज टू डायमेंशनल, सर्किल जो है बेसिकली इसकी जो डायमेंशन है वो टू डायमेंशनल है। सिमिलरली
व्हेन वी टॉक अबाउट द स्फेयर, स्फेयर इज थ्री डायमेंशन, तो ये टू डायमेंशनल अगर ऑब्जेक्ट हो या वी हैव अ थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट दी इट्स एंगल्स, हम कैसे एंगल्स उसके फाइंड आउट कर सकते हैं या उसके यूनिट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सो ज्योमेट्रिकल शेप्स की। तो ऐसा कोई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में प्रीवियसली जो है कोई ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं थी, कोई हम ऐसा कोई हमारे पास जो है मेजरिंग बेसिक क्वांटिटी नहीं थी, नहीं बेसिक जो है उसका कोई यूनिट था। देन साइंटिस्ट डिसाइडेड दैट वी हैव अनदर, वी शुड हैव अनदर काइंड ऑफ अ सिस्टम, एंड उस सिस्टम का नाम रखा गया या उसका रखा गया सप्लीमेंट्री सिस्टम या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है जी, सप्लीमेंट्री जो हम उसको यूनिट्स कहते हैं। ठीक है जी, इसमें जो आपके पास बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिसके हम फाइंड आउट करते हैं, जो है आपकी सर्किल हो गया हमारे पास, फॉर एग्जांपल सर्किल में हम जो है उसको हम क्या कंसीडर टू डायमेंशन, उसमें हम कहते हैं प्लेन एंगल। ठीक है जी, प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल का जो बेसिकली इस टू डायमेंशन सर्किल जो है, इसकी एग्जांपल हम ले रहे हैं प्लेन एंगल में, तो इसका यूनिट जो यहाँ पे लिया गया वो रेडियन, रेडियन इज अ यूनिट ऑफ अ प्लेन एंगल। ठीक है, और दूसरा है स्ट्री रेडियन, स्ट्री रेडियन बेसिकली ये यूनिट है आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल बेसिकली थ्री डायमेंशन है, सॉलिड एंगल कंसीडर एज अ स्फेयर, स्फेयर जो है ना आपका, स्फेयर हम कंसीडर करते हैं थ्री डायमेंशन। ठीक है, थ्री डायमेंशन कैटेगरीज में आ जाता है, तो उसका जो हम जो है फाइंड आउट करेंगे, जो है इसका जो मेजरमेंट करेंगे वो हम करेंगे स्ट्री रेडियन में। ठीक है, और प्लेन एंगल जो है वो उसकी जो हम फाइंड आउट करेंगे, जो है मेजरमेंट करेंगे, वो हम करेंगे रेडियन में। ठीक है, यहाँ तो डिग्रीज में भी कर सकते थे, लेकिन डिग्री भी हम कर सकते हैं कि कितने डिग्री है, लेकिन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में साइंटिस्ट ने जितने भी हैं उन्होंने जो है डिग्री को ऐसे कंसीडर नहीं किया, बल्कि रेडियन को ही कंसीडर किया एज अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ओके, प्लेन एंगल मींस दोज ज्योमेट्रिकल जो है ज्योमेट्री हैविंग जस्ट लाइक इन द शेप ऑफ सर्किल या टू डायमेंशन जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी हम जो है फाइंड आउट करते हैं, जो है वो उसको कहा जाता है प्लेन एंगल, और उसका यूनिट जो है वो कंसीडर किया गया था एज अ रेडियन। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कि डिफरेंस क्या है, जो कॉन्सेप्ट क्या है आपका जो है प्लेन एंगल का और सॉलिड एंगल का। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको जहन में ये थोड़ा डिफरेंस आपके जहन में आया होगा कि प्लेन एंगल जो होता है बेसिकली, प्लेन एंगल बेटा वो टू डायमेंशन जो है वो जो होता है सर्किल, सर्किल होता है वो जो टू डायमेंशन उसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं जो वो और सिमिलरली जो है आपके सॉलिड एंगल जो है थ्री डायमेंशन जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसकी हम जो है मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उनके हम जो है यूनिट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सो दिस सिस्टम इज एडिशनल, और जो कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल से रिलेटेड है। ठीक है जी, उसके सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के बाद जो न्यू सिस्टम जो लॉन्च किया गया था उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री सिस्टम, और उसके यूनिट्स को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इसमें बेसिक क्वांटिटीज आपकी होंगी, तो जो इसका जो एंगल फाइंड आउट करेंगे वो प्लेन एंगल का करेंगे और सॉलिड एंगल का करेंगे। ठीक है जी, इनके यूनिट्स को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक, अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन हम समझेंगे, आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है, और जो है वो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डायग्राम को समझ अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब जो इसकी डेफिनेशन है बेटा आपको ये याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है रेडियन, रेडियन जो है बेसिकली रेडियन इज अ प्लेन एंगल, रेडियन जो है इज अ प्लेन एंगल है, रेडियन इज अ प्लेन एंगल, और ये टू डायमेंशन एंगल है, suspended at the center of circle, suspended at the center of circle by an arc length which is equal to the radius of the circle। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसकी डेफिनेशन, रेडियन इज अ प्लेन एंगल, रेडियन जो है हम प्लेन एंगल को कहते हैं, जो कि टू डायमेंशन जो है वो आपकी है एंगल, टू डायमेंशन एंगल है जो कि सर्किल का एंगल है। ठीक है जी, रेडियन इज अ प्लेन एंगल टू डायमेंशन सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क लेंथ व्हिच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्किल। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे कि रेडियन जो है बेसिकली, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, इसकी फिगर बनाएं। ठीक है, नाउ कंसीडर दिस सर्कल, ये आपके सर्कल आप देख रहे हैं। ठीक है जी, ये सर्कल है, टू डायमेंशन सर्कल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कह रहा है कि रेडियन जो होता है ये एंगल है आपका किसका है, प्लेन एंगल। ठीक है, ये प्लेन एंगल की जो फिगर है, प्लेन एंगल का मतलब है टू डायमेंशनल सर्कल। ठीक है बेटा, सो रेडियन हम कैसे, ये बेसिकली क्या है आपका, इज अ प्लेन एंगल। ठीक है, तो जो प्लेन एंगल का यूनिट है। ठीक, तो जो आपके पास एक आर्क लेंथ होता है, लेट सपोज ये सेंटर ऑफ सर्कल है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ से, और ये पॉइंट जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से लेके यहाँ तक क्या होगा डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस, इसको हम क्या कहते हैं रेडियस, रेडियस का सिंबल क्या है आर है। अब लेट सपोज यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो, ये
हमने बी पॉइंट सेलेक्ट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी पॉइंट, एंड येलो लाइन में इसको हम कहते हैं आर्क, आर्क हम इसको कहते हैं, ठीक है जी, आर्क लेंथ कहते हैं, ठीक है, आर्क लेंथ इसको कहते हैं, ठीक है जी, क्योंकि सर्किल की बात हो रही है, एक लेंथ है। अगर लीनियरली हम कहें कि लेट सपोज ए पॉइंट से लेकर, इसी को हम अगर लीनियरली लें तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक हम कहेंगे ये जो है लेंथ है, ठीक है। लेकिन ये सर्किल की बात हो रही है, ठीक है, सर्किल का जो सरकमफेरेंस है उसका जो फार्मूला है वो 2 पाई आर है, ठीक है जी। और ये जो एंगल है इसमें सर्किल में जो होंगे वो कितने होंगे, वो 360 डिग्री इसमें एंगल्स होते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से इसका हाफ जो हम लेंगे सर्किल का वो क्या होगा, उसका डायामीटर कहलाएगा, और हाफ ऑफ डायामीटर इज कॉल्ड द रेडियस, ठीक है जी। तो इसका रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस इसका यहाँ पे आर है, और हमने डिस्टेंस लिया हुआ है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, जिसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। ये इसको जो है आर्क लेंथ कहा जाता है। फिर इसमें सर्किल की जो है लैंग्वेज में ऐसी ज्योमेट्री आपको जैसी नजर आएंगी तो आप यहाँ पे इसको आर्क लेंथ ही कंसीडर करोगे। तो आर्क लेंथ जो है बेसिकली इज ए लेंथ विच इज जो इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल के। यहाँ पे डेफिनेशन के मुताबिक कह रहा है कि ये जो आर्क लेंथ है आपकी, आर्क लेंथ जो हमने यहाँ पे शो किया है वो एस से किया हुआ है, ठीक है। तो आर्क लेंथ बेसिकली इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। मतलब ये डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर कहलाएगा ये 1 रेडियन। जो ये एंगल बनेगा, ये जो बीच में आप एंगल देख रहे हो थीटा, वो कहलाएगा 1 रेडियन, ठीक। So it is basically the distance between the arc length and the which is equal to the radius। जो arc length का distance है वो equal होना चाहिए। जो definition मैं दोबारा repeat कर रहा हूँ, basically the angle suspended the center of circle से जो angle बना है which is equal to the arc length of which is equal to the radius of circle। इसका मतलब है कि जो एंगल आपका ये बना है तो वो इक्वल होना चाहिए आपका आर्क लेंथ से, ठीक है। ये जो आपके पास आर्क लेंथ है ये मस्ट शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब लेट सपोज ये अगर हम बात करें तो ये हम देखें इसकी मेजरमेंट हम ले लें, इसकी मेजरमेंट और इसकी रेडियस की मेजरमेंट ये दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए सेंटर ऑफ सर्कल से। तो फिर यू कंसीडर होगा कि ये जो है बेसिकली रेडियन है। अगर हम इसी पॉइंट को हम यहाँ से मिलाएं, बी पॉइंट को जो है सेंटर ऑफ सर्कल से कंसीडर मिलाएं, तो ये रेडियस और रेडियस सेम ही रेडियस होगा, ठीक है। तो ये एक रेडियस जो ये इसके बराबर होना चाहिए आर्क लेंथ के। तो इफ इट इज इक्वल टू द आर्क लेंथ तो हम कहेंगे ये बेसिकली जो एंगल जो बन रहा है थीटा जो होगा वो क्या होगा, रेडियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो जो एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन है, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उसकी डेफिनेशन। रेडियन इज बेसिकली द प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल क्या है, 2 डायमेंशनल जो है वो सरफेस है, 2 डायमेंशनल जो है आपके पास जो है एरिया है वो कंसीडर हम करें एज अ सर्किल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, जो कि सेंटर ऑफ सर्किल से जो है बेसिकली एंगल बना बाय एन आर्क लेंथ, जो है ये आर्क लेंथ से लेके विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। आर्क लेंथ से लेके जो है ये जो रेडियस ऑफ सर्किल है यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो जो इक्वल होंगे तो हम कहेंगे ये 1 रेडियन है, ठीक। तो बेसिकली ये आपका कहलाएगा रेडियन। एंड रेडियन बेसिकली इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट है, तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होगा वो कहलाएगा रेडियन। एंड रेडियन जो है बेसिकली द रेडियन इज बेसिकली यूनिट ऑफ अ प्लेन एंगल 2 डायमेंशन व्हिच इज सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। ये कहाँ से शुरू होता है रेडियन, ये सेंटर ऑफ सर्किल से लेके जो सेंटर ऑफ सर्किल ये रहा, सेंटर ऑफ सर्किल से लेके ये जो आर्क लेंथ है, ठीक है, आर्क इसको कहेंगे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक होती है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये बराबर होनी चाहिए इस आर्क लेंथ के। तो हम कहेंगे आर्क लेंथ ऑफ सर्किल। ये सर्किल की आर्क लेंथ है ना, यहाँ पे दूसरी आर्क लेंथ भी हो सकती है और भी आर्क लेंथ हो सकती हैं, ठीक है जी। हम बना सकते हैं ये ए बी, यहाँ से बी से सी तक आर्क लेंथ हो जाएगी, तो और इसी तरह डी डी तक हो जाएगी। तो हम जो है बना सकते हैं यहाँ पे आर्क लेंथ जो है रेडियस जो है वो रेडियस से जो है डिस्टेंस हम जो है ले सकते हैं सर्किल का। सो यहाँ पे जो इसका यूनिट जो कंसीडर यहाँ पे लिया गया है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में, तो इसका यूनिट जो है वो रेडियन लिया गया है, ठीक है जी। सो यहाँ से लेके डिस्टेंस जो है सेंटर से लेके यहाँ तक रेडियस है, रेडियस का जो विच शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ, उसके बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये जो एंगल बनेगा वो सस्पेंडेड ओवर हेयर, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन या रेडियन। तो ये रेडियन कहलाएगा, ठीक है जी। हम मजीद इसकी डेरिवेशन हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फार्मूला है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का। अब इसका जो फार्मूला है आपके पास जो आएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से होगा एस इज इक्वल टू एस जो होता है बेसिकली आर्क लेंथ होता है,
और थीटा जो है आपके पास है जो है वो जो है रेडियन से जो है एंगल क्रिएट होता है, और आर इज द रेडियस। तो यहाँ पे हम इसके जो फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे मेंशन करेंगे आर्क लेंथ डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये रेडियन का फार्मूला है। ठीक है, रेडियन को हम शो करते हैं, ठीक है, जो है जो प्लेन एंगल का फार्मूला है, सॉरी प्लेन एंगल का ये फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू जो है आपका आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्किल एस अपॉन टी। अब इसके यूनिट्स हम जो है डिस्कस करेंगे, इसका यूनिट जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो अगर लेट सपोज जो आपके पास जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ बेसिकली इसी डायग्राम को हम जहन में रखेंगे, इसी डायग्राम को आप जहन में रखिएगा। ठीक है बेटा, तो आर्क लेंथ जो है विच इज इक्वल टू द रेडियस। तो क्या होगा कि अगर आर्क लेंथ जो है हम उसको मेजर करें और जो है आप रेडियस को मेजर करो, उनकी दोनों की जो अगर वैल्यू सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो बाकी इसका यूनिट क्या बचेगा, यूनिट इसका क्या बचेगा, सिर्फ रेडियन बचेगा। तो रेडियन इसका जो है वो यूनिट होगा। ठीक है, मजीद इसको अगर इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसका फार्मूला कितना है अब, जिसका फार्मूला जो है वो 2 पाई आर है। तो मजीद अगर इसको हम जो पूरी सर्किल की बात करें, आर्क लेंथ की बात अगर ना करें, पूरे सर्किल की बात करें। ठीक है, दोस्तों सर्कमफेरेंस में जितने भी आपके पास आर्क लेंथ आ जाती है, तो हम पूरे होल की बात करें तो हम यहाँ पे जो है वी मेंशन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, जो कि 1 रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो 360 आप जो है आपके पास उसका एंगल बनेगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का जो फार्मूला है वो है आपके पास 2 पाई आर, 2 पाई आर जो है फार्मूला है। ठीक है जी, और आर जो है वो आपके पास जो है वो रेडियस है। तो यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि 1 रेडियन बेसिकली कितने डिग्रीज के बराबर है। ठीक है जी, कि 1 रेडियन यहाँ से लेके यहाँ तक है तो कितने डिग्रीज के बराबर है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे पूरे सर्किल को, एंड फार्मूला क्या आएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर डिवाइड बाई आर। सो आर आर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास 2 पाई, और रेडियन जो है वो तो यूनिट है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 होगी। और देन भी उसको जो है हम कहेंगे कि ठीक है डिग्रीज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पाई आर रेडियन जो बराबर किसके होता है, वो 360 के होता है। ठीक है जी, तो 360 जो है वो आपके पास ये पूरा जो है सर्किल की हम यहाँ पे डिग्री लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज करेंगे, ये 2 पाई डिवाइड में है तो जाके मल्टीप्लाई में तो जाके जो है डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 2 पाई। ठीक, तो उसमें पाई की जो वैल्यू है बेसिकली ये जो है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल है, जिसकी वैल्यू है 22.7 या 22.7 जो है विच इज इक्वल टू द 3.14 के बराबर है। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 57.3। 57.3 बेसिकली ये आपके पास 1 रेडियन जो है वो डिग्री में हम इसको करेंगे तो वो 57.3 जो है वो कहलाएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें कि इसमें जो है कितने आ सकते हैं आपके, कितने जो है आप अगर मैं आपसे एज ए होमवर्क आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि इस सर्किल में आप देख रहे हो, इसमें जो है वो कितने जो है रेडियन है, ये आपके लिए होमवर्क है। जो है आस्क फ्रॉम यू, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है जी, तो आप मुझे बताएंगे कि ये तो एक रेडियन जो है 57.3 है, तो आखिर इस सर्किल में कितने आएंगे जो है रेडियन। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक, तो ये आपके लिए छोटा सा जो है वो एक होमवर्क है। ठीक, सो कहने का मकसद ये है कि रेडियन जो है बेसिकली इस यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल का जो है यूनिट है, सही है। इसी तरीके से अगर इस सर्कल को फॉर एग्जांपल इस सर्कल को मैं आधा कर लूँ, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्लेन एंगल ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल। तो आप मुझे बताएं कि उसमें कितने रेडियन है। ये दूसरा क्वेश्चन भी आप नोट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि आपने मुझे बताना है कि इस सर्किल में कितने जो हैं वो रेडियंस हैं। ठीक है जी, उसके बाद मुझे आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताना है कि अगर इसको हम हाफ करें, वो होगा प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल का जो है इसको हाफ करें सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में कितने जो है वो रेडियन हो सकते हैं। ठीक है जी।